بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانی بحران بڑھتے جا رہے ہیں، دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے، بھارت سیاسی گیم کھیل رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے اور اسرائیل کی فلسطین کے خلاف مہم شرمناک ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی جاری ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہے۔ ہم تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام جرأت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ بھارتی صحافی کو چالاکی الٹی پڑ گئی۔ پاکستانی وزیر اعظم کی حاضر جوابی۔ بھارتی صحافی نے طنزیہ انداز میں سوال کیا، پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی صحافی کو دو ٹوک جواب، کہا پاکستان دہشت گردی ختم کر رہا ہے جو بھارت نے مسلط کی۔ UN ہیڈ کوارٹرز میں بھارت کو شرمندگی، وزیر اعظم شہباز شریف کے جواب پر کہے لگ گئے۔ بھارتی صحافی خود خبر بن گیا۔ عالمی فورم پر بھارت کے لیے سبکی۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی بھارتی میڈیا کو ہضم نہ ہوئی۔ ہم نے جنگ جیت لی ہے، اب ہم امن جیتنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کی سرحد پر دہشت گردی کا بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ میں نے ان کا جنگ بندی میں کردار پر شکریہ ادا کیا۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کی جانب سے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر کا جنگ بندی کا فیصلہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے اہم تھا۔ انہوں نے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ نیتن یاہو کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم ممالک نے واک آؤٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب بعد ہی جنرل اسمبلی خالی ہو گئی۔ نیتن یاہو ہال خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ UN کی جنرل اسمبلی کے باہر اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا فلسطینی جھنڈے لہراتے ہوئے نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ سامنے آیا۔ مظاہرین کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ٹیکس گوشواروں میں تمام پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو شامل کرنے کی شق ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے گوشواروں میں پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو کے لیے شق ختم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کی زیر صدارت کمیٹی نے شق ختم کرنے کی منظوری دی۔ کمیٹی کی تجاویز کی حتمی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دی گئی۔ FBR نے پراپرٹی کی کم ویلیو ظاہر کرنے پر مارکیٹ ویلیو بتانے کی شق شامل کی تھی۔ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن سے چند روز پہلے IRS فارم میں تبدیلی ہوئی تھی۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو سیاسی بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق ICC نے بھارتی کپتان کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ بھارتی کپتان پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ICC نے سوریہ کمار یادو کی سرزنش بھی کی تھی۔ بھارتی کپتان نے 14 ستمبر کو پاک بھارت میچ کے بعد سیاسی بیان دیا تھا، جس کے بعد PCB نے بھارتی کپتان کے بیان کے خلاف ICC کو شکایت کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اوول آفس وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو امن کا علمبردار قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق ٹرمپ دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ، دلیرانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت فراہم کی۔ صدر ٹرمپ کے بدور پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر سے ملاقات کے لیے اینڈریو ایئر بیس پہنچے تو ان کا ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے خیر مقدم کیا، جس کے بعد وزیر اعظم سخت سیکیورٹی میں وائٹ ہاؤس روانہ ہوئے۔ اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی وفد کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں امریکی نائب صدر
जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की गर्मजोशी की तारीफ की और उन्हें तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशें करने पर अमन का अलमबरदार करार दिया। उन्होंने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा, जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की और इस तरह जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। एलामिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। न्यूयॉर्क में हफ्ते के आगाज में मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस गजा और मगरबी किनारे में अमन की बहाली के लिए जामे तबादले के लिए मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं से मुशावरत के इक़दाम की भी तारीफ की। मुलाकात के दौरान पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, तवानाई के मंसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले टैरिफ इंतजामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए शराकत दारी को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान की ज़राअत, IT, कानून, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन समेत इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की पुरतपाक दावत भी दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाही ताल्लुकात तवील हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू, कहा सऊदी अरब के साथ दिफाही मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाही मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है कि शायद कतर हमले ने इस मुआहदे के लिए बातचीत को तेज़ किया हो। सऊदी अरब के साथ दिफाही ताउन पहले से जारी है। सऊदी अरब मुआहदे से पहले से जारी दिफाही ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफीर मैरी ओ'नील की मुलाकात हुई है। तजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की आयरलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कहती हैं। आयरलैंड उसूल पसंदी और तरक्की की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद कहना था, इस्लामाबाद में आयरलैंड के पहले सफारत खाने का क़याम तारीखी पेशरफ्त है। आयरिश सफारत खाने का क़याम सियासी, मुआशी, सकाफती और तालीमी ताउन को नई जहत देगा। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब हल्फ बर्दारी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से रुकने सूबाई असम्बली इस्माइल राहू से हल्फ लिया गया। इस्माइल राहू को महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का कलमदान सौंप दिया गया। सिंध काबीना में रद्दोबदल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान सौंप दिया गया, जबकि महकमा तवानाई नासिर हुसैन शाह के पास रहेगा। PND का महकमा ले लिया गया। सईद गरीब से महकमा बल्दियात वापस, महकमा लेबर और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान दे दिया गया। जाम खान जोहरू को महकमा PND का कलमदान दे दिया गया। वो महकमा आपाशी के भी वजीर हैं, जबकि मखतूम महबूबुल जमान को महकमा खुराक का कलमदान दे दिया गया। गर्दशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाले जान है। इसके खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। वजीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PTI दौरे हुकूमत में गर्दशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमने गर्दशी कर्जे का हल अवाम के सामने रखा। हमारी हुकूमत गर्दशी कर्जे में 1000 अरब की कमी लाई। जब एक नए पाकिस्तान की हुकूमत का दौर था और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जब पिछले साल हमने हुकूमत संभाली तो ये गर्दिशी कर्जे का हुजम, जहां 4 साल के अंदर उनकी हुकूमत के अंदर 1200 अरब रुपए से इजाफा हुआ था, वो उसके बाद वाले दौर के अंदर जब तक ये हुकूमत हमने संभाली तो कुल 2400 अरब रुपए के इर्द गिर्द ये मंडला रहा था। एक साल में ये गर्दिशी कर्जे के अंदर 800 तकरीबन अरब रुपए की कमी, रिकॉर्ड कमी, बगैर कोई मजीद कर्जा लिए। हमने जो IPPs के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए थे, IPPs की बड़ी बड़ी कंपनीज को मनवाया था और उनका शुक्रिया कि वो मान गए थे और हमने म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया था, जिसके तहत 3600 अरब रुपए की बचत आइंदा मुस्तकबिल के अंदर हमने अपने आवाम को
निकाल के दी थी। 1225 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है उसको हमने बैंकों के साथ स्पेशल एग्रीमेंट करके कम सूद के ऊपर पैसा लेके इसके ऊपर कंट्रोल भी किया, उससे कमी की। तो ये गर्दिशी कर्जा 6 साल से पहले भी खत्म हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 साल के अंदर अब ये गर्दिशी कर्जा का नामो निशान नहीं रहेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की इंटरनेशनल बरादरी से इमदाद के लिए विफाक से बात की थी, किसी सूबे से नहीं। पंजाब हुकूमत को मसला हो रहा है, इस बात पर तनकीद नहीं बनती, इनके शायद आपस के मसाइल हैं। वज़ीर आला पंजाब कह रही थी कि कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से कैसे अपील कर सकता है। वज़ीर आज़म खुददार भी हैं और बाइज्जत भी। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही, ये इंतहाई गिरी हुई चीज़ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की, वो बात उन्होंने हमेशा, और पीपल्स पार्टी ने की, वो वफाकी हुकूमत से बात की। उन्होंने किसी सूबे से बात नहीं की, उन्होंने वफाकी हुकूमत से अपील की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से अपील की कि जी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलें और उनसे मदद मांगें। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। वो तनकीदें जो लोग कर रहे हैं काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद अब उनके आपसी क्या मसाइल है मुझे समझ में नहीं है। हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा कह रही थी कि कोई खुददार शख्स आलमी बरादरी से अपील कैसे कर सकता है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुददार भी हैं और बाइज्जत शख्स भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब पे सियासत नहीं कर रही, ये मैं बताना चाहता हूँ। सैलाब पे या किसी भी कुदरत आफत पे सियासत करना हमारे लिए, हम समझते हैं कि ये नहायत ये कोई भी करे वो बहुत गिरी हुई चीज़ है। आलमी बरादरी से अपील कर रहा है, वो खुदा न खासा वो खुददार नहीं है या बाइज्जत नहीं है। ये कमेंट्स नहायत ही मैं समझता हूँ अनएक्सेप्टेबल थे। और किसको कह रहे थे? हमारी पार्टी के लिए कह रहे थे, अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, वो खुद ही फैसला कर सकते हैं। तो आप किसी की खुददार की और ईमानदारी की सर्टिफिकेट जो है अब हमें PMLN की इन दोस्तों से नहीं लेने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब की आवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत से इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो, वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है। जहाज में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की जानों को खतरा। जहाज में 27 पाकिस्तानी मौजूद हैं। जहाज में शदीद आग लग गई है, जबकि शहरियों को वक्ती तौर पर निकाला गया है, फिर जबरदस्ती वापस जहाज में भेज दिया गया। ये वाकया यमन की रास उल ईसा बंदरगाह पर पेश आया है। जहाज तेहरान से तेल यमन की जानिब लेकर जा रहा था। अमले के पास आग बुझाने के कोई आलात भी मौजूद नहीं है, जबकि अमले को मुसलसल खतरनाक सूरत हाल का सामना है। मुतासरा अफराद की जाने बचाने की अपील उनकी जानिब से की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा इस खबर से मुताल्लिक। देखिए, यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है और जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमले की जानों को जो है वो इस वक्त खतरा है। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस जो है पाकिस्तानी जो 27 मौजूद हैं इस जहाज में उनकी जानिब से डाली गई हैं, अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान में भेजी गई हैं और उनको बताया गया है कि जहाज में शदीद जो आतिशज़दगी है वो इस वक्त जारी है और जहाज मुसलसल जो है वो आग की लपेट में है। लेकिन अभी तक किसी ने उसके ऊपर उस जहाज पर लगी आग पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम जो है वो नहीं किए गए और अमली को वक्ती तौर पर निकाला गया है, फिर जबरदस्ती जहाज में दोबारा जो है वो भेज दिया गया है। अभी तक ये नहीं पता चल सका ये जो 27 पाकिस्तानी हैं इनको कि इस जहाज के ऊपर जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसको अगवा किया हुआ है वो उनका किस मुल्क से ताल्लुक है, लेकिन उनको जहाज के अंदर जो है वो बिठाया गया है, एक कमरे के अंदर बिठाया गया है जहाँ पर उनको सांस लेने में भी अब जो दुश्वारी है उसका सामना करना पड़ रहा है। वाकया जो है वो यमन की रास अल ईसी बंदरगाह पर पेश आया है और जहाज जो है ये तेहरान से तेल जो है वो यमन की तरफ लेकर
जा रहा था। अमले के पास जो है वो आग बुझाने के लिए इस वक्त जो जहाज के अंदर कोई जो आलात होते हैं वो भी मौजूद नहीं है। तो मुसलसल जो है वो ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपील भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें अपडेट किया।